outcrop of the Kudappa system are also noticed in Krishna, Kashmir, Simla, and the Nepal Himalayan. Krishna, Kashmir, Simla, and the Nepal Himalayas, in which slate and quartzite are main rocks. In which slate and quartzites are main rocks. The deposit of slate in southern part of Pir Panjal the deposits of slate in southern part of Pir Panjal, Ramwan, and Kishtwar area. The deposits of these rocks in southern part of Pir Panjal, Ramwan, and Kishtwar area. Pir Panjal, Ramwan, and Kishtwar area. अंडरलाइन करेंगे इसको. पीर पंजाल, रामवान एंड किश्तवार, रामवान, किश्तवार एरिया called Dogra. Dogra slate materials which are used for building materials. Dogra slate को क्या करेंगे? अंडरलाइन. कौन कौन सा है? किश्तवार, रामवान और कश्मीर, पीर पंजाल. ठीक ना? पीर पंजाल, रामवान एंड किश्तवार. That is known as Dogra slate and it is used in the building materials. Life and economy. इसका लिखना है लाइफ और इकोनॉमी. The Kudappa rocks are azoic and unfossiliferous. The Kudappa rocks are azoic and unfossiliferous. Either life did not exist in Kudappa. Either life did not exist during the Kudappa times. Either life did not exist in Kudappa period. Kudappa times, during the Kudappa times, or early organism did not have either life did not exist during the Kudappa times or early organism did not have hard part, did not have hard parts in their body. Hard part. It is being said about this either early organisms या early जो था सबसे पहले, या तो उसमें क्या था? अनफॉसिल फेरस का मतलब क्या होता है? जीवाश्म उसमें नहीं है. अब जीवाश्म उसमें नहीं है तो इसका मतलब क्या था? या तो जीवन नहीं था, या तो अगर था तो इसमें हार्ड पार्ट नहीं था, रीढ़ वगैरह नहीं होगी, हड्डियां नहीं होगी उसमें. यही कह रहा है और कुछ नहीं. अनफॉसिल फेरस है ये. Either life did not exist during the Kudappa times or early organism did not have the hard part in their body to preserve as fossils. To preserve as fossils. Change the paragraph and write the Kudappa rocks contains iron, manganese ore. The Kudappa systems या Kudappa rocks contains iron, manganese ore, asbestos, nickel,
एस्बेस्टस, निकेल, कॉपर एंड कोबाल्ट। They also provide a slate marble. They also provide a slate marble and jasper. They also provide a slate marble jasper. Jasper to building material. आर्कियन और पुराण खत्म हो गया, ठीक है। आर्कियन और पुराण जब खत्म हो गया, अब इसका मतलब क्या है, प्री कैम्ब्रियन, है ना। प्री कैम्ब्रियन पीरियड क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद स्टार्ट हो जाती है फेनरोजोइक कैम्ब्रियन से, है ना। अप्रोक्सीमेटली 700 मिलियन ईयर एगो the Precambrian period started 700 million years ago. The Precambrian period started 700 million years ago. The earth changed from gaseous state to liquid state. The earth changed from gaseous state to liquid state. इस समय पृथ्वी के बारे में बताया जा रहा है। माइक चालू किए क्या बाहर का? माइक चालू है क्या बाहर का? आवाज गैसियस टू लिक्विड स्टेट. We know that our Earth emerged from a swirling nebula of interstellar gas and dust. Swirling nebula of interstellar gas and dust along with the sun and other bodies in our solar systems. मुझे पता है ना कि कहां से हुआ था, ये छोटे छोटे कण से निर्माण हुआ था. Countless teeny minerals grains collided with one each other under the force of inherent gravity. एक आंतरिक गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या था, बना था, ये एक दूसरे से कॉम्पैक्ट हुआ था. तो कह रहा है कि इस समय जो हुआ था गैसियस स्टेट से किस स्टेट में फॉर्म हुआ था, ये लिक्विड स्टेट में. इसका मतलब कि यहां भी अभी जीव नहीं होगी, इसके बाद होगी. प्री कैम्ब्रियन पीरियड में भी क्या होगा, अनफॉसिल फेरस था, है ना, कुछ नहीं था. इसका मतलब आपका क्वेश्चन पिछले सेशन में था रेप्टाइल्स, यहां तक तो अभी नहीं आया है, यहां तक अभी नहीं आई है, ठीक है ना. आती कहां से, कुछ भी आएगी तो कैम्ब्रियन से आएगी, ठीक है. लिखिए, द प्रीकैम्ब्रियन पीरियड स्टार्टेड 700 मिलियन ईयर्स एगो. द अर्थ चेंज्ड फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड स्टेट. द सॉलिड आउटर क्रस्ट was formed due to the solid outer crust was formed due to cooling and solidifications. The solid outer crust was formed due to cooling and solidifications of liquid materials. This phase was followed by the formations of This phase was followed by the formations of dense atmosphere surrounding the earth.
पृथ्वी सबसे पहले गैस रूप में था, फिर लिक्विड फॉर्म में हुआ, लिक्विड फॉर्म में कब हुआ था, ये जब कंडेंस हो गया था, इसका मतलब है कि इसमें गैस निकली होगी ना, वाटर वेपर निकला होगा, और वाटर वेपर जब निकला होगा तो इसका मतलब क्या, उसका क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो। वाटर वेपर क्या करता है, आफ्टर कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन, वर्षा होगी ना फिर तो। वाटर वेपर जब ऊपर जाएगा फिर संघनन होगी, कंडेंसेशन की प्रोसेस होगा, आफ्टर दैट क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। इसका मतलब है कि पृथ्वी अभी तो ये गैस रूप में थी ही, सबसे पहले वर्षा होना स्टार्ट हुआ होगा। वर्षा होना स्टार्ट इतना आसान से नहीं हुआ होगा, क्योंकि पृथ्वी इतनी तप्त थी, इतनी गर्म थी कि यहाँ की बूंदे पृथ्वी पे पहुंच पाना इतना आसान नहीं था, पहुंचता ही नहीं था, इवोपोरेट हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे बहुत वर्ष के बाद जब क्या हुआ, ठंडा होते गया, ठंडा होते गया, तो फिर बर्फ पानी आना स्टार्ट हुआ, बरसाना आना स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले लैंड नहीं बना था, जबकि ये पूरी पृथ्वी अभी क्रस्ट का निर्माण नहीं हुआ था, अभी लैंड नहीं बना था, और सबसे पहले सागर ही बन गया था, है ना। इसका मतलब चारों तरफ पहले क्या हो गया था, जल ही जल हो गया था। तो लैंड के निर्माण से पहले महासागर बन गई थी हमारे पृथ्वी पे। मतलब क्या हुआ था, सबसे पहले सागर ही बन गया था। क्वेश्चन थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लगता है, लेकिन यही प्रोसेस है कि जमीन नहीं बनी थी पहले, ये गैसियस रूप से थोड़ी सी सॉलिड रूप में आई, सॉरी लिक्विड रूप में आई, उसके बाद थोड़ा सा सेमी सॉलिड इसको कह सकते हैं, सेमी सॉलिड हो गया था, उसके बाद फिर वर्षा हो गई, चारों तरफ महासागर बन गया था। सेम चीजें हुई होगी। और सबसे बड़ी चीजें हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं, बात सही है कि एक ही कंटेंट, एक ही रॉ मटेरियल, क्योंकि सूर्य से जब अलग होकर के बना था तो मटेरियल तो एक ही था ना। तो जब फॉर्मेशन सब सोलर सिस्टम जब हम पढ़ा रहे थे उस समय हम डिस्कस किए थे कुछ चीजें, कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा कर देती है आपको। जैसे कि हमें कॉन्सेप्ट दिए थे कि यूनिक बनने का, ठीक ना, आपको क्या बनना है, यूनिक बनना है। तो सभी चीजें मिला करके, लेट मी टेल यू, ए नंबर ऑफ फैक्टर्स डिसाइड वेदर ए प्रोग्राम विल बी सक्सेसफुल और नॉट, ओनली वन थिंग कांट मेक एनी डिफरेंट। सिर्फ एक चीजें बहुत अच्छा हो जाने से कुछ चीजें सॉल्व नहीं हो जाती या सफलता नहीं लग जाता है, लेकिन ये जरूरी है कि सभी चीजें मिला करके और उसमें एक चीज जब अच्छा होगा तो यूनिक बनिएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ आया था, कुछ ऐसी चीजें यहाँ थी पृथ्वी पे उपलब्ध जो इस चीज को जनरेट किया, और कुछ ऐसी चीजें उपलब्ध वहां नहीं थी जो इस चीज को वहां पदार्पण नहीं हो पाया, और वहां लाइफ का एग्जिस्टेंस नहीं हो पाया। ठीक है, सोलर सिस्टम में बताए थे सब चीजें। बाकी अभी तो सिर्फ इसको लेकर चलना है, ठीक ना, वो टॉपिक आएगा तो हम करते जाएंगे। कहां तक लिखे, हाँ, सराउंडिंग द अर्थ, चेंज द पैराग्राफ। ड्यू टू ग्रेजुअल बट कंटिन्यूड कूलिंग एंड solidifications, ड्यू टू gradual and continued due to gradual but continued cooling and contraction of the earth, due to gradual but continued cooling and contraction of the earth and resultant condensations of water and resultant condensations of water vapor began the precipitation process, began the precipitation process, began the precipitation process and resulted in the formations of the and resulted into the formations of rivers and sea, and resulted into the formations of rivers and sea. The rocks were subjected to maximum metamorphism. The rocks were subjected to the maximum metamorphism
ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। ड्यू टू हीट एंड प्रेशर्स, किसी भी चट्टान को जब प्रेशर डालेंगे ना या फिर ज्यादा हीट उसको करेंगे तो उसका रूप का अंतरण हो जाएगा, रूपांतरण उसका हो जाएगा, ठीक ना, डिफरेंस पैदा हो जाएगा उसमें। क्या चीज स्ट्रक्चर में, हाँ क्या क्या हो सकता है उसका, शेप चेंज होगा कि नहीं होगा, टेक्सचर, मतलब कायांतरित और रूपांतरण चट्टान उसको बोला ही जाता है, ठीक ना, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर्स। among the plant kingdom only marine grasses were evolved. Among the plant kingdom only marine grasses, मैरीन ग्रासेज मतलब समुद्री घास जो होता है ना, ये इवॉल्व हुआ था। क्यों? क्योंकि अब वर्षा होकर के मैरीन ग्रासेज है, MER, हाँ MARIN, हाँ मैरीन ग्रासेज। ये मैरीन ग्रासेज कब क्यों आ गया था? क्योंकि अब वर्षा हो गई थी और पृथ्वी पर चारों तरफ जल हो गया था, इसलिए इसका पदार्पण हो गया। किसका? मैरीन ग्रासेस का। लिखिए, सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट, सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट, सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट एनिमल्स वेयर इवॉल्व्ड। Evolved in warm sea what the land area was divided of animals, what land area were divided of animals, divided of animals। कह रहा है कि वर्षा के कारण जब समुद्र बन गया था, और समुद्र बन गए थे तो मैरीन ग्रासेस की उत्पत्ति हो गई थी, और सॉफ्ट एनिमल्स जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स था वो भी आया था, लेकिन कहां तक सीमित थी उसको, वो सिर्फ समुद्र में, वार्म ओशियन में सिर्फ सीमित थी, वो लैंड पे भी नहीं आया था। मतलब जमीन पे किसी भी प्रकार का जीव का निर्माण नहीं हुआ था। ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड का है, मतलब प्री कैम्ब्रियन पीरियड हल्का सा स्टार्ट हो गया था जीव। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है फेड्रोजोइक, जहां दृश्य जीवी कहलाता है, जो यहाँ से जीव दिखना और स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है, शुरू होना। तो इसके बाद एक बचा था विंध्यन, लास्ट में लिखिए विंध्यन सिस्टम, द विंध्यन सिस्टम। This system derived its name from, this system derives its name from the Vindhyan hill, where its rocks are prominently exposed, where Vindhyan hills, where its rocks are prominently exposed. It forms dividing line, it forms dividing line, it forms dividing line between the Ganga plain and the Deccan. हल्का सा दिख रहा है आप लोग को, करवाएंगे नेक्स्ट टॉपिक वही। अभी हम इसके पिछले कुडप्पा करवाए थे और हम बताए कि सेमी सर्कुलर शेप में ये था, यही है देखिए कुडप्पा।
मोटा क्यों आता है? कैसे कैसे? रेंज इसका इतना बढ़ गया है। यही है, दिख रहा है थोड़ा सा दूसरे कलर का, ये कुडप्पा रीजन कर्नाटक आंध्र प्रदेश का सेमी सर्कुलर एरिया मैंने लिखाया था, यही कुडप्पा है। तो इस तरह के जितने भी जगह जगह देख रहे हैं ना, थोड़ा सा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ है, तो जो हम मेंशन करवा दिए वहां पे पाया जा रहा है। और कह रहा है कि अभी जो विंध्यन की बात चल रही है, तो विंध्यन कह रहा है कि गंगा प्लेन, ये जो गंगा प्लेन है और दक्कन को दो डिवाइडिंग रेंज का काम करता है, डिमार्केट करता है। किसका? गंगा प्लेन को उधर बांट देता है और डेक्कन का इधर कर देता है, ठीक ना। बीच में एक नर्मदा रिवर है, कहां से किसके किसके बीच में बहती है? नर्मदा रिवर है वो विंध्यन, मालवा और भंडेर प्लेटू है, चंदौर हिल है, सतमाल हिल है, ये सब हिल इस रीजन में है। तो किसके बीच में नर्मदा रिवर बहती है? देख के नहीं बताना है। हाँ, कौन सा, क्या बोले आप? हाँ ठीक है, आंसर ठीक है। हाँ, कहां से? एस। ये अमरकंटक है, रेडियल है। सपोज दैट एक इधर नर्मदा जाती है, एक सोन जाता है और एक महानदी, ये तीनों यहां से निकलती है। तो हकीकत में नर्मदा रिवर है, इट फ्लो बिटवीन द विंध्यन एंड सतपुड़ा रेंज। ये क्या हो गया देखिए ना, ये हो सकता है, ये आप सही बोले, ये नहीं हो रहा है ये। ये तो काटने वाला, क्रॉपिंग, क्रॉप करने वाला नहीं हो रहा है आज। इसको डिलीट कीजिए तो, इसको डिलीट कर दीजिए पहले। हाँ ये आया हुआ है, इसको कीजिए। अब शायद कुछ दिख रहा है ना। तो कुडप्पा देख रहे हैं कहाँ कहाँ है? और विंध्यन क्या जी? मध्य प्रदेश तो क्षेत्र हो गया। और ये डिवाइडिंग लाइन है, ये गंगा प्लेन को अलग कर देती है और इधर को अलग कर देती है। और नर्मदा रिवर की जो बात कर रहे थे, सतपुड़ा और विंध्यन के बीच में ही नर्मदा नदी है। ऊपर से नीचे आएंगे तो मालवा प्लेटो से लेकर के आपको विंध्यन, सतपुड़ा, चंदौर, सभी सतमाल वगैरह सब नीचे आ जाएंगे। सतमाल इधर पड़ता है। कच्छ, अब देखिए ये वाला एरिया हरा वाला जितना है, ये कौन सा हो सकता है? हरा भी पढ़ाया नहीं है। नहीं नहीं, हरा वाला क्षेत्र जो है, ग्रीन फील्ड जो है, किस तरह का, कौन सा हो सकता है?
अभी इसको जब हम पढ़ाए नहीं है ये बता रहे हैं क्या जी, ये रॉक्स है ना, ये रॉक्स है। दक्कन डेक्कन तो नहीं करवाया ना अभी, दक्कन ट्रैप तो नहीं करवाया ना अभी, तो ये तो रॉक्स लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ के आप बोल सकते हैं, लेकिन दिखता कहाँ है ये, दिखता भी नहीं है। हाँ वही करें कि लिखा हुआ सिर्फ है। अच्छा ये वाला देख लिए थे ना, डेक्कन ट्रैप है। डेक्कन ट्रैप इसका मतलब है कि रहना चाहिए कहाँ था, सिर्फ दक्षिण में रहना चाहिए था ना। अब देखिए इसकी स्थिति, पूरा गुजरात का नीचे निचला पार्ट, लगभग वेस्टर्न पार्ट पूरा कवर किए हुए दक्कन पार्ट। आप पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, वहां फंस जाएगा बच्चा। अब डेक्कन जैसे नाम लिखेंगे डायरेक्ट वो प्रायद्वीप भारत में मारेंगे। हो सकता है कि महाराष्ट्र नहीं कर्नाटका में भी मार देंगे, ठीक ना। लेकिन अगर गुजरात ऑप्शन में दे देगा तो यहाँ फंस जाएगा। जिसको मतलब इसीलिए तो बार बार बोलते हैं कि मैप को देखिए, कि यहाँ से सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट पढ़िए जरूर, लेकिन मैप जब तक देखिएगा तो याद नहीं रहेगा। तो मैप देखिएगा तो पता चला अच्छा इसका पार्ट यहाँ भी था, गुजरात का कुछ पार्ट है ना, तो ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ से कहाँ तक लिखे हम लोग, विंध्यन में लिख रहे थे ना। डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द गंगा प्लेन एंड डेक्कन, इट कवर ए एक्सटेंसिव एरिया, it covers an extensive area of extensive area of 1,03,600 किलोमीटर स्क्वायर फ्रॉम चित्तौड़गढ़ टू सासाराम। चित्तौड़गढ़ कहाँ पे है, एस, चित्तौड़गढ़ टू सासाराम बिहार। मतलब यहां से लेकर के इस पैरेलल है, मतलब ईस्ट से सॉरी वेस्ट से ईस्ट तरफ बढ़ा हुआ है विंध्यन रेंज। It has a thickness of over 4,270 4,270 with sedimentary rocks meters, with sedimentary rocks like sandstone, shale and limestone. Sandstone, limestone and shales. Now out about lithology. The main rocks of the Vindhyan range, या Vindhyan system are coarse, medium and fine textured sedimentary. Fine textured, core, medium and fine textured sedimentary sandstones, shales and limestone. While the lower Vindhyan rocks are, the main rocks are, क्या चीज लिखे, the main rocks of the Vindhyan systems are coarse, medium and fine textured
sedimentary sandstones, salts, and limestones, while the lower Vindhyan rocks are mostly calcareous. Calcareous, 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 चूनेदार पत्थर होता है ये, कैल्शियम युक्त है ये, कैल्केरस। एंड आर्गिलेसियस, 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 ARGI, क्या चीज? स्थूल है, स्थूल टाइप का होता है। स्थूल हिंदी वर्ड है ये, मतलब मोटा जैसा होता है थोड़ा सा, स्थूल टाइप। देखते हैं कि बच्चा कैसा थुलथुला जैसा है, स्थूल मतलब। आर्गिलेरियस, ARGILACIOS, आर्गिलेसियस मृण्मय होता है, मृण्मय। हिंदी बड़ा कठिन होता है, मृण्मय। फाइनर क्या होता है? पार्टिकल है ये, मृण्मय। ऑफ ए मैरीन ओरिजिन, ऑफ ए मैरीन ओरिजिन, and the upper Vindhyan rocks largely consist of, upper Vindhyan rocks largely consist of sandstone of a largely consist of sandstone of a fluviated, what is the meaning of the fluviated? नदी। शुद्ध हिंदी क्या बोल रहे हैं? नदी द्वारा, नदी मतलब नदी द्वारा लाया गया है, ये फ्लुविएटेड है, उड़ा करके। जलोढ़ जो होता है ना, उसको क्या करते हैं? लुढ़का करके लाया गया है और डिपोजिट किया है, इसको कहते हैं फ्लुविएटेड। अच्छा, नदिये अच्छा शब्द है, शुद्ध हिंदी हकीकत में नदिये ही होता है, मतलब नदी से संबंधित है ये। नदी के द्वारा लाया गया है ये, डिपोजिशन से। नदी के द्वारा लाया गया क्या है? इरोडेड मटेरियल्स है। कहां तक लिखे? फ्लुविएटेड एंड एस्चुरियन ओरिजिन, एस्चुरियन। एस्चुरी सुने ना, ज्वार नदमुख, एस्चुरियन ओरिजिन, एस्चुरियन ओरिजिन सेम चीजें हैं। नदिये, टाइम हो गया क्या? अच्छा, ओके। फ्लुविएटेड है और एस्चुरियन है, दोनों है। ज्वार नदमुख कहाँ बनाता है? ज्वार कहाँ बनती है? ज्वार ये जो होती है, ज्वार नदमुख रिवर नाम सुने हैं ना? नहीं सुने, कोई बात नहीं, टॉपिक आगे आएगा तो बस सुनेंगे। और फ्लुविएटेड भी वही हुआ, ये इरोडेड मटेरियल को डिपोजिट करेगा कहाँ जा करके? एज ए फॉर्म ऑफ डेल्टा एट द माउथ ऑफ रिवर, है ना? डेल्टा के रूप में करेगा ये फ्लुविएटेड इरोडेड मटेरियल से। ठीक है, बाकी नेक्स्ट विंध्यन के बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेशन में करेंगे।